Hello guys, how are you all? I guess everybody is fabulous. Okay, as in the last video of tense, I taught you about the simple present tense. Okay, in this video we will discuss some more rules about the tenses. As I taught you earlier, that what do you mean by tense? Tense means there which will indicate the time and work, means which will tell you that that work is done in which time, कि किस टाइम में क्या काम हुआ है। मीन्स कि आपका कौन सा टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, टाइम कौन सा है और काम हुआ कितना है, कि काम हो रहा है, चल रहा है, फ्यूचर में होगा या भी कंटिन्यू है। तो यही सारे आपके टेंसेस होते हैं कि कौन सा काम कब हो रहा है, और टाइम एंड वर्क पे ही ये सारे आपके टेंसेस डिपेंड करते हैं। ओके, टेंस मींस देयर विच विल टेल यू द टाइम एंड वर्क, कि टाइम क्या है और उसके बाद काम कितना हुआ है। ठीक है, एज I taught you past. Past means it will indicate yesterday. Present is now and future is your tomorrow, means जो कल होने वाला है that is your future. So it will indicate you the past, present, future. This is known as your tense, and tense will tell you the time and work, that when the work is done. Let's come to now some rules. These are the all the rules of the tense. Here is the list of the rules. Okay, and these are all the rules of the tense. This is the tense rules chart actually. Okay, you should pause the video and note down the rules in your fair register. Okay, like a present, past, future. So how many types have present? Present, simple present, okay, continue, present perfect, and perfect continue. Same past, simple past, past continue, past perfect, and past perfect continue. Third is the future tense, future simple future, future continue, future perfect, and future perfect continue. So all the rules are given to you. One by one we will discuss all the rules in some videos. So in the prior video I taught you about the simple present. Now we are going to start simple past, present continue, and past continue in this video. Let's start now. As I taught you earlier about simple present tense, that what are the rules there. Like in positive, what will you use? First form plus s or es. Okay, in negative form what will you do? You will use do or doesn't with that. Means आपने negative form अगर simple में बनानी है तो आपको simply not नहीं लगाना है. Not will come. Not जो है आपका कभी भी क्या नहीं आएगा, आपका without helping verb कभी भी नहीं आता. ठीक है, तो for this one you have to use do, don't in simple present tense, and in other forms में भी आपको इसके साथ कोई ना कोई helping verb लगानी होती है, जैसे will not, shall not, can't, may not, और जैसे आपका has not, have not, had not होता है, means to say was और were के साथ not लगता है, फिर is am are के साथ लगता है, means to say कि not कभी भी अकेला आपका use नहीं होता, it will use always with the helping verb. Okay, so subject first form. After that if you are making negative in simple present tense, then you have to use do or doesn't यहाँ पे. और secondly जो आपका question mark, if you want to make the sentence interrogative, you want to ask a question in present tense, then you will use do or does not. यहाँ पर do or does आप यहाँ पर लगाएंगे, आप किसके लिए? question के लिए, interrogative sense के लिए. ठीक है, और एक और आता है डजंट ही गो देयर, कि क्या वो नहीं गया है वहां पे। मीन्स डू और डज के साथ आप नॉट भी यहाँ पर लगा सकते हो, कि एक क्वेश्चन में आपने टू क्वेश्चंस आपने यहाँ पर पूछ लिए, जैसे कि डजंट ही गो देयर, डिडंट ही, डजंट यू प्ले देयर। तो ये क्या होता है आपका, कि आपने डज और डू के साथ यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म भी यहाँ पर आप कई बार यूज कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो योर क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंस। अब यहाँ पर examples है, the same example I discussed in the last video also there. Okay, like his wife sets the table, तो उसकी जो wife जो वो टेबल को सेट करते हैं, set is your first form, और set के साथ हमने क्या लगाया? s लगाया, क्योंकि his wife यहाँ पर singular है. ठीक है, I like, I के साथ क्या है हमारा? I हमारा प्लूरल है, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. We love, we प्लूरल है, तो love के साथ हमने love सिर्फ सिंपल ही हमने यहाँ पे यूज किया, उसके साथ s yes हम यूज नहीं करते. माई सन मेक्स, अब माई सन यहाँ पर क्या सिंगुलर है, और मेक के साथ हमने क्या लगा दिया? es या s हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, बिकॉज माई सन इज सिंगुलर. आई डोंट प्ले, अब यहाँ पर अगर आपने इसको नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया? जैसे आई प्ले चेस,
आई डोंट प्ले चेस, आपने इसको नेगेटिव बना दिया डू के साथ नोट लगा के, ठीक है। और अगर हमने शी के साथ नेगेटिव लगाना है तो क्या लगेगा, शी डजंट फील सो गुड, तो डजंट हम यहाँ पर लगाएंगे ही शी इट के साथ। अब यहाँ पर एक बात हो रही है, जैसे डू और डज नॉट होता है, देखो यहाँ पर जब भी आप एस ई एस यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देन यू विल यूज विद द हेल्पिंग वर्ब डू और डजंट। डू के साथ हमने ई एस ऑलरेडी यूज कर दिया है जब हम सिंगुलर को यूज करते हैं, जैसे शी के साथ है, शी के साथ डू, डू के साथ हमने ई एस यूज किया तो डजंट बन गया हमारा। तो इसके बाद हमने जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने, जैसे हमने फील यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है, शी डजंट फील सो गुड, तो यहाँ पर हमने फील लगाया, फील्स नहीं लगाया। हमें पता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या ई एस लगाना अगर हमारा सिंगुलर है तो, बट हमने यहाँ पर डू के साथ ई एस लगा दिया ना ऑलरेडी, तो इट मीन ये हमारा क्या हो गया, डजंट, डस हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें फील के साथ दोबारा से एस ई एस नहीं लगाना है, ठीक है। सेम यहाँ पर जैसे इट डजंट वांट टू ईट इट, तो यहाँ पर इट डजंट, अब हमने इट के साथ क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने वांट के साथ दोबारा से एस या ई एस नहीं लगाना, हमें पता कि इट हमारा सिंगुलर है और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमारा क्या आता है, एस या ई एस आता है। बट यहाँ पर जब हमने क्या लगा दिया, डू के साथ ऑलरेडी हमने ई एस लगा दिया, यहाँ पर हमने इसको डज लिख दिया है, तो हम यहाँ पर क्या है, इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म है हमें यहाँ पर इसके साथ एस ई एस नहीं लगाना दोबारा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अब डू दे, दे के साथ हम डू का यूज करते हैं क्योंकि ये प्लूरल होता है दे, और दे के साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसका इंटेरोगेटिव बना दिया तो डू दे स्पीक, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, बाद में आपकी क्या आ गई, आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे यहाँ पर डज शी, तो डज आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड यू हैव टू यूज अ क्वेश्चन मार्क आल्सो एट दिस वन। नाउ कम टू देयर इन सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट को इससे कैसे कंपेयर करना, देखो जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हमने सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म लगाई, ऐसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। हमने नेगेटिव बनाया था पास्ट टेंस को, तो हमने किसका यूज किया था, सब्जेक्ट प्लस डिडंट का यूज हमने किया था यहाँ पे, ठीक है। और हमने प्रेजेंट टेंस में किसका यूज किया था, डज और डजंट का। तो अब यहाँ पर क्या कंपैरिजन है कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको अगर नेगेटिव बनाना है, कोई नेगेटिव स्पीक करनी है कोई बात, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डोंट या फिर डजंट का यूज करोगे। और डोंट भी हमने कहाँ पे लगाया, जहां पर कि हमारा प्लूरल था, और डजंट हमने कहा लगाया जहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है। बट पास्ट टेंस में आइदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू हैव टू यूज डिड, आपको डिडंट का ही यूज करना है, डिड का ही यूज करना है यहाँ पे आपको, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे, जैसे आपकी डिड थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने डिड का यूज किया, तो चाहे वो सिंगुलर है, आइदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू हैव टू यूज डिड first after that subject in case of interrogative sentence, and use a question mark also at the end of the sentence। तो यहाँ पे क्या आपका कि जब भी आप पास्ट टेंस में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कि आपका पास्ट का कोई क्वेश्चन, आपको पास्ट की कोई बात पूछी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिड आप पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और ये ध्यान रखना जो आप डिड यूज करते हो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। जैसे डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, देखो कितने सारे एग्जांपल्स हैं। ही मैट सेकंड फॉर्म हमने लगा दी सिंपल पॉजिटिव जो हमारा है उस सेंटेंस में, दे वॉज्ड सेकंड फॉर्म लगा दी, यू वेंट सेकंड फॉर्म लगी, शी डिडंट स्टडी, देखो यहाँ पर डिडंट स्टडी है, तो डिडंट के बाद हमारा स्टडी आया है, ना कि स्टडीड आया है, ठीक है। तो डिडंट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे दे हैड डिनर लास्ट नाइट, तो उन्होंने डिनर किया है लास्ट नाइट। अब पुलिस के साथ देखो, द पुलिस है, डिडंट फाइंड, डिडंट के साथ हमने फाइंड का यूज किया कि पुलिस को कोई भी क्लू यहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद आई बिकेम अ टीचर 2 years एगो, देखो एगो होता है, यस्टरडे होता है, लास्ट वीक होता है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट ईयर होता है, ऑल दीज वर्ड्स विल इंडिकेट योर पास्ट टाइम थिंग्स देयर, ओके। आई बिकेम अ टीचर, तो यहाँ पर बिकेम मीन्स हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया। आई बोट, ही बोट, शी बोट, इनके साथ क्या लग गया आपका यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गया। फिर वी स्टडीड सेकंड फॉर्म आ जाती है यहाँ पर। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, तो यहाँ पर भी आपका सेकंड फॉर्म आ जाता है। अगेन I tried to show you simple past tense, all three forms separately in the boxes there, right? You can pause the video and try to understand what are the changes in the sentence there, okay?
एज आई टॉट यू अर्लियर देयर दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी सेकंड फॉर्म लगती है चलेगी, और उसके बाद आपका जो नेगेटिव होगा आपको डिडंट डिडंट करके फर्स्ट फॉर्म लगानी है हर एक में। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, इफ यू आर मेकिंग इंटेरोगेटिव ऑफ पास्ट टेंस देन यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, लाइक डिड आपको सबसे पहले लगाना है, उसके बाद आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपका सब्जेक्ट आपको उसके बाद लिखना है, एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू राइट। ओके, आफ्टर दैट continue. Now the comparison will be of continue, past continue and present continue. So present continue में क्या होगा आपका, present continue में आपके present continue की क्या आपकी helping verbs है यहाँ पे is am are, और past continue की आपकी helping verb है was were। तो अगर आपका आई है, आई के साथ आप एम का यूज करते हो, यू के साथ आप आर का यूज करते हो, वी के साथ आर यूज करोगे, यू के साथ करोगे, दे के साथ करोगे, ठीक है। और ही शी के साथ आप क्या लगोगे यहाँ पर, जैसे ही शी के साथ इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर आपको क्या लगा, एम को अगर आप इन कोटेशन के अंदर डालते हो, जैसे आपने एपोस्ट्रोफी साइन के अंदर डाला है, लेटेस्ट फॉर्म है आम आएगा यहाँ पर। यू के साथ लगाते यू आर आप लगाते तो इसमें ए नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ आर ई लगाना पड़ेगा। ये आपकी लेटेस्ट फॉर्म इंग्लिश की कैसे लिखते हैं, जैसे देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज यू कैन राइट द सेम, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, कि आपने यहाँ पर क्या किया, एपोस्ट्रोफी साइन का यूज कर एस को लगा दिया, सो दिस इज ऑल्सो कंसीडर हीज। okay, short form, and this is the latest form of writing English there. Now come to the past continue। अब past continue में क्या आपकी was और were है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगल के साथ आप was का यूज करेंगे, प्लूरल है तो आप उसके साथ were का यूज करोगे। अब जैसे she was cooking all morning, she was है तो आपका सिंगुलर आपका क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर होता दे तो दे वर कुकिंग हो जाता। इसी का अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो शी वॉज नॉट स्लीपिंग, या फिर दे वर नॉट स्लीपिंग हो जाएगा, नॉट लग जाएगा आपका वोज वर्ग के साथ। ऐसे आपका वोज वर्ग अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगेगा, आपका हेल्पिंग वो पहले आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की आपकी फॉर्म आएगी। तो वॉज शी स्लीपिंग, ओके, या फिर वर दे स्लीपिंग, वर वी स्लीपिंग। ओके, तो इस तरह से आपके जो वो इंटेरोगेटिव सेंस बनेगी कंटिन्यू टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होगा आपका, देखो अब यहाँ पर मोर एग्जांपल्स आर गिवन टू यू देयर। एफर्मेटिव मींस आपका क्या होता है कि जो सिंपल होता है उसको बोलते हैं एफर्मेटिव, जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एफर्मेटिव, या फिर सिंपल पास्ट होता है उसको मींस जो एफर्मेटिव, इट मींस आपका जो वो पहला जो होता है सिंपल, सिंपल को बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस को एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव में आपका जैसे आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग लिखा हुआ, ठीक है। इसी के नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। अब इंटेरोगेटिव बनाना है, इसी का हमने क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो जा रही है, क्या वह जा रहा है, क्या हम जा रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या लगेगा, आई एम गोइंग क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, इज शी ही और इट गोइंग क्वेश्चन मार्क, आर वी गोइंग, हम क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ठीक है। आर दे गोइंग, क्या क्या वो जा रहे हैं, तो क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क। नाउ द पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस में देखो जैसे सब्जेक्ट आपका आई यू वी ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट वोज और वर, आई के साथ वोज लगा है, यू के साथ आपका क्या लगा है, वर लगा है, और ही के साथ वोज लगा है। अब आपकी वर्ब प्लस आईएनजी आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट इज देयर सेपरेटली रूल्स आर गिवन देयर इन द पॉजिटिव फॉर्म, की पॉजिटिव फॉर्म में क्या है कि आई के साथ क्या लगा है, वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज है, ठीक है। एंड लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल रिमेन सेम, सेम विल बी देयर, यू के साथ वर है, वी वर, यू वर, दे वर स्टार्टिंग देयर। ओके, नाउ हाउ यू आर मेकिंग negative of your continue, I was not, he was not, okay, she was not, it was not, and इसके बाद यहाँ पर you were not, we were not, ओके, यू वर नॉट और दे वर नॉट। तो यहाँ पे ये क्या गया आपका, अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो वोज और वर के साथ आपको क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। नाउ इफ यू आर मेकिंग इंटेरोगेटिव ऑफ योर पास्ट टेंस कंटिन्यू टेंस, देन यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। अगर आपका आई ही शी इट है उसके साथ वोज पहले लगेगा, अगर आपका यू वी दे है तो इसका उसके साथ आपका वर्ब पहले लगेगा, ठीक है। Now the last is their past continuous tense. Affirmative, affirmative, you know that what will be affirmative means your simple, means your positive, positive या फिर simple या फिर affirmative means same there, means I was playing, you were playing, she was playing, it was playing, we were playing, they were playing।
Now if you want to make your negative sense of the sentence, if you are framing the sentence in negative, then you will use I was not playing, you were not playing, he was not playing, we were not playing, they were not playing. And if you want to ask a question about the past continue, कि past में कोई काम चल रहा था, क्या वो अब भी चल रहा है, मतलब क्या चल रहा था, was I playing, क्या मैं खेल रहा था, were you playing, क्या आप खेल रहे थे। तो इस तरह से क्या है कि आपको पास्ट टेंस की कंटिन्यू जो आपकी होती है कंटिन्यूटी को यहाँ पर चेक करते हैं कि आप कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ पर मीन्स यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, was or were according to the subject। okay, so it was your last whatever I taught you there in the last video. I taught you there about simple present tense, but in this video I again repeated, even I compared simple past with simple प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यू विद पास्ट कंटिन्यू। मीन्स मैंने आपको टू जो पार्ट है यहाँ पर कंपेयर किए, जैसे सिंपल पास्ट को सिंपल प्रेजेंट से कंपेयर किया कि क्या इनके अंदर डिफरेंसेस है, वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, कि अगर पॉजिटिव है तो उसमें कैसे लिखते हैं, नेगेटिव है तो उसमें कैसे लिखेंगे, और अगर आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो पास्ट और प्रेजेंट में उसमें क्या चेंज है। ऐसे मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यू और प्रेजेंट कंटिन्यू में, कि पास्ट कंटिन्यू वगैरह लगाते हो तो क्या चेंजेस है और प्रेजेंट कंटिन्यू में लगाते हो तो उसमें क्या चेंज है। I think I taught you most of the rules there, like simple past, simple present, past continue, and present continue. Okay, and what will you do there? You will do the practice of the daily use sentences, whatever are happening around you there, कि आपके जो आसपास में जो भी हैपनिंग हो रही है आपको क्या करना है, इनसे इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, इनसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच, कि आपको 10 सेंटेंस किसके लिखने हैं, प्रेजेंट के लिखने हैं, 10 आपको जो सिंपल पास्ट के लिखने हैं, ठीक है, और 10 आपको किसके, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट कंटिन्यू के आपको लिखने हैं। मीन्स टू से यू हैव टू डू, व्हाट इज द मोट ऑफ द वीडियो देयर, मोट ऑफ द वीडियो इज देयर सो दैट you will be able to frame the sentences, and most of the sentences around us are framing with the help of a simple present, simple past, present continue and past continue, and these are the most important rules for you all, that you will frame the sentence around you। okay, so I hope this video will be very helpful for you all। okay, thank you watching for this video, and if you want to promote it, subscribe the channel। what will happen then, you will get some more videos about it। okay, and you can make your grammar part strong there, right? so what will you do, you will pause the video, you will note down the rules of the सेंटेंसेस देर के रूल्स के, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको टेबल करवाई है, तो टेबल यू कैन पोज द वीडियो, आप वीडियो को पोज कीजिए और टेंस की पूरी टेबल को अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपका सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट को कंपेयर किया, तो ऐसे ही आप भी कॉपी के अंदर उसको कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट यू विल कंपेयर प्रेजेंट कंटिन्यू एज वेल एज पास्ट कंटिन्यू ऑल्सो इन योर नोटबुक, सो दैट you will come to know what are the changes in the continue, especially in past and present there। okay, thank you so much for watching the video, have a nice day everybody।